Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. So now let's begin. Our today's lecture is about geometric or cis-trans isomerism, in which we will study the introduction of geometric isomerism and their types, as what are the cis isomers and what are the trans isomers, and their different examples, different factors that affect their geometric arrangement or their geometric patterns, and then the nomenclature, that is easy system for naming them. So start करते हैं हम. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? द डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स और groups of atoms about the doubly bonded carbon atoms. Okay, the only condition for this type of geometric isomerism is the compound must consist of a doubly bonded carbon atoms, like this one, CC double bond here, or the carbon-carbon double bond exists. Also in this case, here the carbon-carbon double bond is found out, and then around this double bond the different geometric arrangements of the atoms or groups of atoms. For example, this is atom and this is the group of atoms. So we may say that different arrangements of the atoms or group of atoms around the doubly bonded carbon atoms is called as geometric or cis-trans isomerism. And such stereoisomers that show geometric isomerism are called as cis-trans isomers. Okay, the different compound or different stereoisomers that show geometric isomerism are called as geometric isomers. For example, here the cis-2-butene and the trans-2-butene, overall these are called as cis stereoisomer, and this is called as trans stereoisomer. So in the case of cis isomer, cis isomer is the one in which two similar groups lie on the same side of the double bond. For example, this is the double bond. Let's see that this carbon atom consists of one hydrogen and one methyl group. So the lowest priority would be given to this hydrogen. This is said to be at number 2, and the higher priority is kept at number 1. So we just assign them numbering system on the basis of their priority. This is at number 1, this is 2, and around this carbon, that is doubly bonded carbon atoms, so we also give the number system to these groups. Here it has on the higher priority, so given number 1, and this is given number 2. So now see that such an isomer in which two similar groups lie on the same side of the doubly bonded carbon atoms, these same groups lie on the same side of this double bond, are called as cis isomer. How we may say that on the same side of the double bond? When you see this compound along the double bond, okay, along the axis of the double bond, not perpendicular, just along the axis of this double bond, और जब इसके एक्सिस के, इस डबल बॉन्ड के एक्सिस के एक साइड पे सेम होंगे, दूसरी साइड पे भी सेम होंगे, तो उस केस में हम इसे सिस आइसोमर कहेंगे. एंड इन दैट केस वेयर द टू डिफरेंट ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस डबल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ आप देखें इस कार्बन एटम का हाई प्रायोरिटी नंबर 1
लोअर साइड पे है और इस केस में हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये अपोजिट साइड पे हो गया। अगर इसी साइड पे हो अबव दिस डबल बॉन्ड, तो उस केस में हम कहेंगे 1 1 एक ही साइड पे था, 2 2 सेम साइड पे थे, तो वो सिस था। और इसमें अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ही कार्बन एटम के अलोंग नहीं देखना, हमने दोनों कार्बन एटम्स के अलोंग देखना है। अगर दोनों कार्बन एटम्स पे जो ग्रुप्स हैं सेम प्रायोरिटी के, वो इस एक्सिस के या डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हों तो सिस, और अगर अपोजिट साइड पे हों जैसे इस केस में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इस केस में हम इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। और क्योंकि ये CH3 CH CH CH3 4 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे कहेंगे, और इसकी देखें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इन दिस केस इट्स जनरल नेम इज 2-ब्यूटीन, बट इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इट इज ट्रांस 2-ब्यूटीन and it is cis-2-butene. And the definition of this trans isomer is the one in which two similar groups lie on the different or on the opposite side of the double bond. So how can we write down this definition? In the case of cis isomer, the two similar groups lie on the same side of carbon-carbon double bond. And in the case of trans isomer is the one in which two similar groups lie on the opposite side of the carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond के opposite side पे हैं similar groups, और इसमें similar groups same side पे हैं और इसमें opposite side पे हैं, तो ये trans isomer है, ये cis isomer है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके कंडीशंस कौन सी हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस द कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन to show the geometric isomerism is having the double bond. So in this way only alkenes and their derivatives show this type of isomerism, और हर अल्कीन भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, सिर्फ ऐसी अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगी जिसमें दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हों। दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से हर एक कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच हो, ये भी डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो और ये भी डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच हो, आपस में डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के लिहाज से नहीं। एक ही कार्बन एटम पे जो दो ग्रुप्स अटैच होंगे डबल बॉन्ड के अलावा, ये वाले दो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हों। इसी तरह इस पे भी सेम अटैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखें ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, और यही कंडीशन है अल्कीन्स के या उनके डेरिवेटिव्स के केस में कि इनको आपस में इन ग्रुप्स को डिफरेंट होना चाहिए जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, क्योंकि जब ये सेम साइड पे होंगे सेम, तभी ये सिस होगा, और अगर अपोजिट साइड पे होगा तो ट्रांस हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की है। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है दैट इज़ फॉर्म्ड वाया द ओवरलैप ऑफ sp2 and sp2 hybrid orbitals, and the pi bond is formed by the pi-pi interaction.
तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp2 ओवरलैप से जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनना है वो आ गया, और ये पाई ऑर्बिटल आ गया। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं इसके साथ, और वो दो ग्रुप्स भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनते हैं। इसका sp2 होता है, और जो बॉन्डेड एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका उनके लिहाज से डिफर होगा। अच्छा, अब ये जो पाई ऑर्बिटल है या दिस इज p ऑर्बिटल टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, ओवरलैप करेंगे और एज अ रिजल्ट आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओवरलैप रीजन हम क्या कहेंगे कि ये पाई बॉन्ड बन गया है, जिसको हम डबल बॉन्ड से शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अगर ये तो सॉलिड है, ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है तो वो रिजिड होगा, दैट कैन नॉट बी रोटेटेड। ठीक है, ये जो दो ग्रुप्स हैं ये रोटेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से बना है, ये इसको हिंडर करेंगे, ये इसको रोकेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर आप जनरली भी देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास दो हैं, अगर आप इस एक कॉर्नर को रोटेट करना चाहें तो इस कॉर्नर को आप स्टेबल रखें और इस कॉर्नर से इसको रोटेट करें, करते जाएं। अब देखें यहाँ पे ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये इसको या तो टूट के मुड़े, ठीक है, लेकिन वैसे ये नहीं रोटेट हो सकता, या फिर ये सारा रोटेट हो तो उस केस में भी सेम, दोनों साइडों पे रोटेशन हो चुकी है, सेम रहेगा। इसलिए जस्ट वन साइडेड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और पाई बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ये सिर्फ उसी कंडीशन में ब्रेक होगा जब हम इसे 62 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, ओवरलैप रीजन नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जस्ट सिंगल बॉन्ड बचेगा, और उस केस में इनकी रोटेशन इजीली पॉसिबल है। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। So we may say that the restriction about carbon-carbon double bond is responsible for geometric isomerism in alkenes. अल्कीन के केस में जो रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन की अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसी की वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं, सीस भी और ट्रांस भी।
फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन, इसको अगर हम हीट करते हैं और एटलीस्ट ये 62 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उस केस में क्या होगा, ये इसका p ऑर्बिटल आ गया। अब देखें, अगर हीट की एब्सेंस में ये एज इट इज़ रहेगा, अगर 62 किलो कैलोरी पर मोल से हीट कम हो, लेस देन 62 किलो कैलोरी पर मोल, तो उस केस में ये ओवरलैपिंग रहेगी, ये पाई बॉन्ड है इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड, और ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, सिस है। तो क्योंकि 62 किलो कैलोरी पर मोल से कम है एनर्जी, ये है लेसर देन 62 किलो कैलोरी पर मोल, और उस केस में ये एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ सिस। लेकिन अगर ये 62 किलो कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी गिवन हो, तो उस केस में क्या होगा कि इनकी जो ओवरलैपिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये कन्वर्ट, अच्छा जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो उस केस में क्या होना है, इनकी रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। उस केस में इसको हम फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, दोनों फील्ड सेम साइड पे हैं, और ये जस्ट रीजन्स शो करने वाला का मेथड है। इस केस में हमारे पास आ जाएगा HCH3। देखें रोटेशन को इस तरह शो किया गया, अब ये जब रोटेट होगा तो CH3 ऊपर चला जाएगा, H नीचे, लेकिन इस पॉइंट पे ये सेम रहेगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे भी रोटेशन हो गई तो फिर भी यहाँ पे और यहाँ वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अब क्योंकि ये लोब्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोटेशन मैंने शो किए थे डिफरेंट शेड्स में, तो अगर यहाँ पे भी हम हाईलाइट करें तो इसका ये रीजन शेडिड ही आना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हुई है इसलिए ये शेडिड रीजन ऊपर शो करवाएंगे। यहाँ पे शो हो रहा है कि इसकी रोटेशन हुई है, और यहाँ पे अगेन अब रोटेशन के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, रोटेशन हो चुकी है, सो एनर्जी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। अब जो ये ओवरलैप करेगा तो उससे फिर पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट अब देखें इसका हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे है, इसका नीचे वाली साइड पे है, दोबारा जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा। चाहे इसको आप 3 लाइंस लगा के शो कर दें या फिर एरो हेड से शो कर दें, दोनों का मतलब सेम है। अब इसमें देखें HCH3 और यहाँ पे CH3 ऊपर है विद डबल बॉन्ड्स, CH3 एंड हाइड्रोजन, और यहाँ इसका नेम आ जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। सो इस तरह अगर हमने सिस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा अप टू such an energy level where it absorbs more than 62 kilocalorie per mole. तो उसके बाद हम इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं।
जो ट्रांस आइसोमर है that is more stable than cis isomer. This its stability is more than this one. The trans isomer's stability is more than that of cis isomer. उसकी reason क्या है? Because in the cis isomer, for example this one, अब देखें CH3 ग्रुप्स जो हैं उनका साइज हाइड्रोजन से बड़ा है. So we can say that these bulky groups and this is the smaller group. As in the cis isomer, the bulky groups lie on the same side of the double bond. So the steric repulsion अगर बल्कि ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे? स्टेरिक रिपल्शन अमंग देमसेल्व्स. तो एक दूसरे को वो जो रिपेल करेंगे, जो स्टेरिक रिपल्शन जनरेट होगी उसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. So we may say that the trans isomers are more stable than cis isomer because in the cis isomer the bulky groups are on the same side of the double bond and the resulting steric repulsion of these groups, these bulky groups, make the cis isomer least stable. So same side पे होने की वजह से उनकी steric repulsion responsible है लेस स्टेबल होने की. और ट्रांस आइसोमर में क्योंकि वो they are on the opposite side of this double bond, so they show the least steric repulsion or no steric repulsion. For this reason the trans isomer is more stable than cis isomer. उसके बाद जो कंडीशन हमने सबसे पहले देखी थी जिसमें था कि किस केस में ये आइसोमेरिज्म शो होगी.